Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11th, and today I am taking the further part from the class 11 syllabus, that is the cash book. So students, hope you all are practicing the numericals related to journal and the ledger part, and if you are getting any difficulty in solving the numericals, you can ask in the comment section. I will definitely solve your queries, and hope you all are learning the new subject accounts in a good manner. So students, without wasting time, let's start today's topic, and my today's topic is the next part from your syllabus, that is the cash book. So next part which we are taking in our syllabus is your subdivision of journal. So you all have done the journal part. Journal is the book of original entry, where the entry is recorded for the very first time. Okay, that means the book in which entry is recorded as soon as the transaction takes place in the business. जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज जर्नल. ओके, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सब डिविजन ऑफ जर्नल. अब जर्नल को अगर हम आगे डिवाइड करते हैं इन द फर्दर पार्ट्स, it is not only one journal book is prepared, there are other books also which are prepared under the head journal only, or those books are also called as journal. So as the size of the business increases, so they make separate books. जैसे जैसे एक बिजनेस का साइज बढ़ता चला जाता है, so it has to record the entries in different books. Okay, so they keep on increasing, the number of transaction increases. जैसे जैसे एक बिजनेस बड़ा होगा उसकी कुछ ट्रांजेक्शन बढ़ती चली जाएंगी. So what they do, they divide the books in the several categories. Okay, so journal is all divided in several categories. So here we are talking here the subdivision. Okay, so just see what is the subdivision of journal. In that, first book is your cash book, which we are going to do today. Then is your purchases book. As from the name it is clear, cash book, that means all cash and bank transaction are recorded in cash book. कैश एंड बैंक यानी कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है या बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी. परचेजेस बुक, इट विल रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेजेस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगी दे विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक. ओके, देन कम्स द सेल्स बुक. Although these are also the separate chapter in your syllabus, that also we are going to discuss in the future videos. So sales book is the book in which we will record all the sales, or you can say the credit sales of the business. Okay, in this we record the credit purchase and credit sales, not the cash purchase and cash sales. Okay, so credit sales is recorded in sales book. Now I come to the next book, that is purchases return book. Purchases return, that means if we have purchased some item and then later on we have returned it due to defect, due to low quality, or due to any you can say non-requirement, or the accurate product has not been delivered. Okay, so वो return when we do, that is recorded in purchases return. यानी after purchasing if we are returning, so it will be recorded in purchases return book. Then comes the sales return book. सेल्स रिटर्न इज दैट बुक इन विच वी हैव सोल्ड द गुड्स, हमने किसी को गुड्स सेल कर दी. आफ्टर दैट ही हैज रिटर्न्ड इट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू मे बी बैड क्वालिटी, ड्यू टू ही डिडंट लाइक द प्रोडक्ट, और एनी अदर रीजन मे बी देयर. सो ही कैन सेंड, और रॉन्ग प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम, सो ही विल रिटर्न दैट, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न. वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा. देन कम्स द जर्नल प्रॉपर. After that, the journal proper is prepared in which all other accounts are recorded. Okay, means cash वाली सारी transaction cash book में आ गई, purchase वाली purchase book में, sales वाली sales book में, purchase return वाली purchase return में, sales return वाली sales return में. इसके बाद भी अगर जो transaction बनती है like related to debtors or some creditors or any other expenses etc., they are recorded in the journal proper. Okay. Then comes the bills receivable and bills payable. Although these two are not in your syllabus, but I am just telling the names to you people, that this is also the part of journal, but they are only prepared in a very large firm
और यू कैन से द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यानी जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा और अलग अलग बुक्स जहां बनाई जाएंगी वहां ये दोनों बुक्स भी बनेंगी. Bills receivable, the bills of exchange which we have to receive, and bills payable means the bills of exchange which we have to pay. Okay, so these are the book. Mainly we will take all these, but today I am taking the first part, that is the cash book. Okay, so let's start with the cash book only. Now cash book is of three types. Okay, three types of cash book is prepared. One is your single column cash book. Single, from the name it is clear, single. That means in which only one column is there for amount. Okay, and इसको हम simple cash book भी बोलते हैं. Okay, and the important point which is related to cash book is that in the cash book the entry is recorded for related to bank and related to cash. यानी जो भी entry cash या bank से related होगी वो इसमें record होगी. And this is the book which is prepared in the form of ledger. Okay, इसको हम ledger की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं. ledger accounts आप सब लोगों ने कर लिए, तो ledger का फॉर्मेट सबको याद होगा. Two sides are there. One side is debit side, one side is credit side. And on the debit side we make date column, particulars column, journal folio column and amount column. Okay, and on the same columns are prepared on credit side also. क्रेडिट में भी आप क्या बनाते हैं, डेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स बनाते हैं, जर्नल फोलियो बनाते हैं एंड अमाउंट बनाते हैं. तो उसी फॉर्मेट के अंदर हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं. सो इसलिए कैश बुक को लेजर भी कहा जाता है एंड जर्नल भी कहा जाता है. ऑल्दो इट इज अ जर्नल बट इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेजर. ओके, ये जर्नल है लेकिन इसको बनाते टाइम हम कैसे बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेजर. लेजर अकाउंट के फॉर्म में बनाते हैं. ठीक है. So now I am coming to the types of cash book, or you can say classification of cash book. First is your single column cash book, यानी जिसमें अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम बनाया जाएगा. ओके, दूसरी है आपकी डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक कौन सी है, जिसमें दो कॉलम अमाउंट के बनेंगे. ठीक है. ट्रिपल कॉलम जिसमें तीन कॉलम बनेंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. और इसमें कौन से बनेंगे, कैश एंड बैंक. और इसमें कौन सा बनेगा, सिर्फ कैश. Okay, so this also I have again explained further also. So it is the journal prepared in the form of ledger. This I have already told. अब आप देखेंगे इसमें कि तीन तरह की कैश बुक है. तो सबसे पहले हम सिंगल वाली करेंगे, फिर हम डबल कॉलम, फिर हम ट्रिपल कॉलम. इन्हीं तीनों को अलग अलग लेंगे. ओके, और आपके एग्जाम में मोस्टली डबल या ट्रिपल में से एक कैश बुक आती है. ओके, सिंपल इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग. We prepare the simple cash book also, but in today's time period simple cash book is not prepared because every business is having bank account. हर business का बैंक अकाउंट है, so they have to prepare the double column or triple column cash book. तो उनको डबल यानी जिसमें बैंक की भी एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाए और कैश की भी रिकॉर्ड हो जाए. सिंगल में सिर्फ आपकी कैश की रिकॉर्ड होती है. ठीक है. सो नाउ द फर्दर पार्ट. अब आप देखेंगे आपको रिकॉर्ड कैसे करना है. मैंने बोला ये अकाउंट यानी लेजर अकाउंट की फॉर्म में बनाया जाता है इसको. अब इसमें दो साइड्स हैं, एक है आपकी डेबिट साइड, दूसरी है आपकी क्रेडिट साइड. ओके, अब डेबिट साइड इज फॉर रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स का मतलब जो हम रिसीव करते हैं, यानी जितना भी कैश हम रिसीव करेंगे या हम बैंक में से रिसीव करेंगे, दैट विल बी डेबिटेड. ओके, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. लेजर अकाउंट की साइड्स आपको याद है, ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप सारी रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करेंगे और राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड के अंदर आप सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे. यू नो द मीनिंग ऑफ पेमेंट्स. जो जो हम पे कर रहे हैं वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जो जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया. अब जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम अमाउंट का बनाया जाता है ऑन बोथ द साइड्स. ओके, जैसे मैंने बताया ये लेजर की फॉर्म में बनती है तो दोनों साइड्स के अंदर अमाउंट का कॉलम आता है. सो देयर इज ओनली वन कॉलम विच इज ऑफ कैश इन द सिंगल कॉलम कैश बुक. वो सिर्फ कैश का होता है, यानी सिंगल कॉलम. एक ही कॉलम बनाया जाएगा, इधर कैश और बैंक. अगर एक बिजनेस बिल्कुल बैंक से सारी ट्रांजेक्शन करता है तो इट विल प्रिपेयर बैंक कॉलम. ओके, अदरवाइज कैश कॉलम. तो कैश एंड बैंक यानी दोनों एक ही अमाउंट कॉलम दोनों तरफ रहेगा. ठीक है. अब हम आते हैं डबल कॉलम के अंदर. डबल कॉलम में क्या होगा, अमाउंट कॉलम तो दोनों तरफ होगा बट दो दो अमाउंट कॉलम दोनों तरफ बनाए जाएंगे. ओके,
सो दो अमाउंट कॉलम में से एक होगा कैश का, एक होगा बैंक का ऑन द डेबिट साइड, फिर क्रेडिट साइड में एक होगा कैश का, दूसरा होगा बैंक का। क्लियर हो गया? सो वो वहां पर क्या होगा, दो कॉलम अमाउंट के डेबिट साइड में बनेंगे, दो कॉलम अमाउंट के क्रेडिट साइड में बनेंगे। ठीक है, देन कम द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब इसमें क्या होगा, तीन कॉलम डेबिट साइड में और तीन कॉलम क्रेडिट साइड में। अब वो तीसरा कॉलम किसका होगा, डिस्काउंट का। और आपको सबको याद होगा जर्नल में आप लोगों ने कैश डिस्काउंट किया है। कैश डिस्काउंट में आपका डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज प्रिपेयर्ड इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इसमें आपके डेबिट साइड में तीन कॉलम अमाउंट के बनेंगे, वन इज फॉर डिस्काउंट, अनदर इज फॉर कैश, थर्ड इज फॉर बैंक। ओके, तो तीन कॉलम बन गए। ऐसे ही आपके क्रेडिट साइड में भी तीन कॉलम बनेंगे, वन फॉर डिस्काउंट, अनदर फॉर कैश एंड द थर्ड फॉर बैंक। सो इससे आपका क्या है, सिर्फ आपको ये मीनिंग और कंसेप्ट और अमाउंट एंड फॉर्मेट समझ में आ गया। ओके, सो जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, हाउ वी विल पोस्ट द एंट्रीज इन कैश बुक और हाउ वी विल रिकॉर्ड द एंट्रीज इन कैश बुक, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सब डिविजन ऑफ जर्नल में ये सारी बुक्स बनती है, कैश परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर, एंड देन बीआर बुक एंड बीपी बुक, बिल्स पेबल बुक। ओके, कैश बुक आपकी तीन तरह की है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये तीन तरह की कैश बुक है। लेकिन कैश बुक एक ऐसा जर्नल है जो कि लेजर की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, इसको हम लेजर अकाउंट की तरह बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें दो साइड्स है। डेबिट साइड में आप सारी रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट्स मतलब जो जो आप रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट साइड में आप सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, जो जो आप पे कर रहे हैं। ओके, देन कम्स द सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक ही कॉलम अमाउंट का होगा दोनों साइड पे। फिर आते हैं हम डबल कॉलम में, इसमें दो दो कॉलम दोनों तरफ होंगे अमाउंट के, एक कैश के लिए, दूसरा बैंक के लिए। क्लियर है? फिर आते हैं ट्रिपल कॉलम पे, इसमें दोनों तरफ तीन तीन कॉलम्स होंगे अमाउंट के, एक डिस्काउंट के लिए, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। क्लियर? सो होप मैंने ये पार्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इसमें से छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, द टाइप्स ऑफ कैश बुक और सब डिविजन ऑफ जर्नल से रिलेटेड। सो होप you must have understood the concept which I have explained today. So students, see you in my next video. Till then, bye bye.